Rub your palms and place it on your closed eyes. Complete darkness is there. In this darkness, you open your eyes, give a light massage to your eyeballs, and let the light in very slowly. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. You're all very much welcome. Please put on your cameras. सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए. ये एक बहुत अच्छी क्लास होने वाली है. किस सेंस में अच्छी होने वाली है? देखिए, आपने हमारे साथ जो भी क्लास किया होगा, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों ने की वो है यिन यांग की थ्योरी. कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, हम लोगों को यह डिसाइड करना पड़ता है कि यिन की अधिकता है या यिन की कमी है, यांग की अधिकता है या यांग की कमी है. हर चीज को एक्सेस और डेफिशिएंसी में देखना और फिर उसको यिन यांग में देखना की. So the most important thing that we tried to learn in all our past classes is that we ought to know how to identify whether any ailment or any medical condition is due to deficiency or excess of yin or yang. Right? अब जो हम लोग सीखने वाले हैं, now what we are going to learn, you may not be able to identify the cause, the causative factor. Still you can give some treatment, and I can assure you that out of 100 conditions, 75 conditions will be definitely helped. Many conditions you will not require any other treatment. It is such a good thing. Now, how? Why? So for this life, what is the most important thing so the life goes on? Where do we get that chi so that the life goes on? कोई बता सकता है क्या है वो रूट जिसकी वजह से जीवन चलते रहेगा? The life will go on. What is it? Essence, Sir, prenatal and postnatal chi. Very good, Sri Vidya. Thank you, sir. Very well said. See, Sri Vidya is one of my old students, and she is here back after a long time. I can see her. Yes, Rahul, you want to add or subtract something, or you are in agreement with that? sir, essence, which is essence, and this essence is converted by the kidneys. Yes, you are right. You are also right. So same thing. Just a moment. I shall have to answer the door.
Sir, your voice is speaker. Okay. I'm sorry, extremely sorry. So kidney is the main thing accordingly. That means original chi. There are two things, as Srividya said, prenatal and postnatal. Let me tell you, prenatal energy, prenatal chi, is the chi which you receive from your mother. There is a lot of confusion in the literature, Chinese literature. There is a lot of confusion. Prenatal, postnatal, this natal, that. Just don't give much of thought to that. Prenatal is the one which you call essence. Rahul has called it essence. So, but that essence as it is not useful for life. Life to go on, that raw material. What is that essence? Essence is raw material. Essence क्या है? Raw material है, कच्चा माल है, which has to be transformed into moving energy, that is chi. जिसको हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है chi में. Then only it becomes useful. वो कौन कर रहा है? किडनी कर रही है. ठीक है. तो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मिंगमेन. What is Mingmen? Let me show you some sketch. दोनों किडनी के बीच में जो जगह था. हाँ, बहुत अच्छा. Well said. Well said. I can't see it here. Chalo, let me draw. Let me draw. Dr. Girish, do you know what is Mingmen? Sir, good evening, sir. Do you know what is Mingmen? Not exactly, sir. Okay, now I am showing you. Yes, sir. It is the chi of both left and right kidney stored in Mingmen. Yes, you are right. Residual chi. Sir, Yes, you are right. These are the two kidneys. Okay. Say, let us call it, this is right. ये राइट वाला है और ये समझो लेफ्ट वाला है. ये जो ब्लैक दोनों किडनी के अंदर ये जो दिख रहा है ब्लैक, ये एसेंस है. दिस इज एसेंस.
ये एसेंस को ट्रांसफॉर्म करके किडनी क्या बनाती है? ची बनाती है। ये जो किडनी जो ची बनाती है एसेंस से, उसको क्या कहते हैं श्रीविद्या? व्हाट डू यू कॉल दिस? दिस इज पोस्टनेटल और प्रीनेटल? This is known as original chi. Original chi, gathered chi also, no? No, this is not gathered chi. Gathered chi Okay. comes in the lungs. Okay. Let us make the language very, very simple. This essence is transformed into chi, and this chi is known as original chi. There is one original chi which comes directly from mother to child at the time of birth. That we can call as prenatal chi. All this is only postnatal chi. You see, there is a lot of confusion. Postnatal chi, we understand that it is through air gathering chi, as you are saying, or food chi, gu chi. That is what is a lot of confusion. Why not this original chi? This original chi is made in your body after you are born. Hello? Before you are born, all your requirements are fulfilled by your mother. And what you bring from the mother's womb is essence. Right? So this is original chi. So original chi is coming from right kidney as well as from left kidney. Chi originalis or chi original chi, or whatever you call it. How it is made? By transforming the essence which is with kidneys. So this original chi, this is known as Mingmen or moving chi. This is also known as moving chi. And this point is, which point is this? GV4. Yes, you are right. And this is also known as Mingmen. You know that this original chi is reached by triple warmer mechanism. Triple warmer mechanism is original chi को हर जगह भेजता है. It sends all over. Where does it send? Where does it go? Sensory organs. Sensory organs. Original chi goes to so many places. Remember, when I ask you where does it go, जब मैं आपसे पूछूं ये कहाँ जाता है, तो याद रखिए कि ये कहाँ जाता है. Solid organs. Solid organs. राहुल, आपने कितनी बार रिपीट किया है, फिर भी वही बात है. Yeah, hi, good evening, sir. Hmm? So, Sonia speaking. Yes, सोनिया. Lungs में. सर यहाँ से जो ची है सारे ऑर्गन्स की ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे जाती है. कुछ लोग कहते हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे, हम लोग नहीं कहते, हमारे स्टूडेंट्स नहीं बोलते. हाँ, कुछ जगह लिखा हुआ है कि सोर्स पॉइंट पे जाता है. डेफिनेटली नॉट. कहाँ जाता है? ऑल gene organs and where else?
all yang organs. ये सारे यिन ऑर्गन और सारे यांग ऑर्गन में जाता है, और वहां जाके क्या होता है? ये दिस इज यूज्ड, दिस इज यूज्ड। सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ओरिजिनल ची? सबसे Is the बड़ी sucking इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो गुण है, क्या है? Sucking power. यस, अंदर लेना. यस, वेरी गुड, वेल सेड। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? अभी राहुल वार्ष्णेय ने जो कुछ कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? डॉक्टर गिरीश, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ओरिजिनल ची? कैमरा ऑन कीजिए डॉक्टर गिरीश, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं क्या? So he is probably in the clinic, forget it. So जैसा राहुल ने कहा, बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ची इज दैट इट सक्स इन। किस चीज को सक करेगा? हमारे शरीर में बहुत सी ओपनिंग्स हैं, और वो ओपनिंग्स भी कहां है? वो सारे ऑर्गन्स से कनेक्टेड हैं। किडनी से कान कनेक्टेड है, लंग्स से नाक कनेक्टेड है, लिवर से आंख कनेक्टेड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So the most important characteristic of original chi is that this makes a particular, wherever it goes, it tries to suck in. That means receiving, reception. This gives reception to anything and everything which is possible. अगर ये veins में चला जाए, तो this will help the receipt of blood from arteries. अगर ये, if it goes in your stomach, this will enable you to swallow things. If it goes in your mind, it will enable to you to perceive. आपको समझने में मदद होगी। जो भी चीज आप सुनते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, एवरीथिंग, द 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 सेंस ऑर्गन्स, दे आर trying to absorb things from outside, outer ambience. बाहर की चीजों को रिसीव करना किसके माध्यम से हो रहा है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। और हर ज्ञानेंद्री किसी न किसी ऑर्गन से जुड़ी हुई है। ये सब आपको मालूम है, ठीक है? और जो यांग ऑर्गन्स में जो जुड़ी हुई है, ये जो चीज आती है, वो क्या करती है? यांग ऑर्गन में जो ओरिजिनल ची गई, उसकी वजह से यिन ऑर्गन, मतलब सॉलिड ऑर्गन जो ची बना रहा है, वो किसको देता है? यांग पोर्शन वो हॉलो ऑर्गन्स को, यांग ऑर्गन्स को दे देता है। तो हॉलो ऑर्गन्स आर एनेबल्ड टू रिसीव the chi generated by solid organs because of original chi. और सबसे बड़ा काम ओरिजिनल ची का क्या है? ओरिजिनल ची सबसे ज्यादा एसेंशियल कहां है? इट इज एसेंशियल इन द लंग्स। टॉप प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के बेसिस पे जाता है। जैसे बनना शुरू हुआ, सबसे पहले कहां जाएगा? लंग्स में जाता है। So the top priority of original chi is that it goes in
lungs. This is the first priority of original chi. है ना? सेकंड कहां है? सेकंड कहां जाता है? सेकंड प्रायोरिटी कहां है? Stomach chi. स्टमक. वेरी गुड, वेल सेड. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सब आपको मालूम है, राइट? अब मेरा सवाल ये है, द क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर. व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज, ये किडनी के पास एसेंस है पूरा, और depending on our past habits and our lifestyle, it generates or it transforms the essence into original chi. The quantity of original chi that is generated by left kidney and right kidney. Left kidney is water kidney, right kidney is fire kidney. Depending on our lifestyle and expenditure of original chi. But remember, always there is a little excess made than whatever has been our requirement. जो हमारी रिक्वायरमेंट समझो 1 महीने की है या पास्ट रिक्वायरमेंट है, जितने दिन की भी होती हो, that is of course not known. लेकिन हम अंदाजा करते हैं कि this is something like 21 days to 30 days की जो रिक्वायरमेंट है. Depending on that, the quantity generated, the quantity of original chi कितनी पैदा करे, कितना एसेंस को ट्रांसफॉर्म करे किडनी, ये डिसाइड होता है उस स्टैटिस्टिक्स से कि हम कितना खर्च करते हैं, और उससे थोड़ा ज्यादा होता है. हमारा सवाल ये है कि ये जो ओरिजिनल ची लगातार किडनी बना रही है, किससे? लाइफ एसेंस से बना रही है. तो ये जो लाइफ एसेंस से बना रही है ची, और जो यूज नहीं हुआ, वो कहां जाएगा? आप लोगों को मालूम है, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर में चली जाती थी. जो ची मेरिडियन वाली यूज नहीं होती थी, वहां का कहां चली जाती थी? मेरिडियन में जो यूज नहीं हुई और ची बना दी और पड़ी हुई है यांग ऑर्गन में भी और यिन ऑर्गन में भी, तो उनकी ची कहां जाती थी? पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर में. अब सवाल ये है कि किडनी जो ओरिजिनल ची बना रही है, जो ओरिजिनल ची यूज नहीं हुआ, द पार्ट ऑफ ओरिजिनल ची, द पोर्शन ऑफ ओरिजिनल ची दैट इज नॉट यूज्ड, वो कहां जाती है? ये किडनी जो बनाती है, वो भी आपको मालूम है कैसे बनाती है. कि मान लो ये राइट किडनी है, तो राइट किडनी क्या करती है? फायर किडनी है, तो फायर किडनी बनाएगी इस तरह से, बहुत से वेवलेंथ जनरेट करेगी. दिस विल जनरेट मेनी वेवलेंथ्स. Larger the wavelength, more yang is the chi. नहीं? और लेफ्ट किडनी अगर वाटर है तो ये भी जनरेट करती है. अब यहां वेवलेंथ थोड़ी छोटी है. क्यों? क्योंकि ये वाटर किडनी है. वाटर किडनी मतलब यिन ची. यिन ची मीन्स शॉर्टर वेवलेंथ्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत सी वेवलेंथ है. ये सारी वेवलेंथ, ये वाली भी और ये वाली भी, सब कहां आ जाती है? DU4 पे, GV4 पे. राइट?
Have we lost, sir? है जी? सर आपका वीडियो फ्रीज हो गया था बीच में. अच्छा, चलो अभी आ गया. जी सर. हाँ, तो ये कहाँ जाएगी? ये हमारी बॉडी में ही, दिस इज नॉट वेस्टेड. आप याद रखिए कि कोई भी चीज बाहर नहीं फेंकी जाती. ची डजंट गो आउट. इट हैज टू बी केप्ट एज रिजर्व. कब एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाए, एक्सीजेंसी, इसको स्टोर करना होगा, राइट? तो स्टोर करने के लिए बहुत सी वेवलेंथ जनरेट, किडनी एक्चुअली सबसे ज्यादा यांग किडनी है और ये बहुत सी वेवलेंथ जनरेट करती है, छोटे वाले भी और बड़े वाले भी, यिन भी और यांग भी. एक्चुअली बोथ द किडनीज आर वेरी यांग, राइट? ये सब बता चुका हूं मैं आपको. तो ये जो नहीं यूज हुई वो लगातार एक पोर्शन ओरिजिनल ची का स्टोर होता रहता है. कहाँ स्टोर होता रहता है? जहां स्टोर होता रहता है उसके बारे में ठीक ठीक मालूम नहीं है. ना तो उसकी शेप मालूम है, ना उसकी ढंग से फ्लो मालूम है, कुछ खास मालूम नहीं है. लेकिन ये मालूम है कि that which is not used, the portion of original chi that is not used is stored in some place which are known as extraordinary vessels. एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स में क्या रहेगा? अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स में मेनली वो रहता है कौन? द ओरिजिनल ची फ्रॉम किडनीज. ये बहुत बड़ी बात है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मालूम रहे तो कम से कम कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल में क्या है. मेरिडियंस में हमें मालूम है ची रहता है, ऑर्गन्स में हमें मालूम है ची रहता है, वी नो दैट. बट व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल में क्या रहता है? तो मेन पोर्शन इसमें भी ची रहता है, लेकिन द मेन पोर्शन ऑफ द ची इज ओरिजिनल ची. व्हाट ओरिजिनल ची? दैट which has not been used, and that is a lot of chi. ओरिजिनल ची का बनना रुकता नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका लगातार खर्च होता रहता है पांचों ज्ञानेंद्रियों में और हमारे मन मस्तिष्क में. All the five sense organs and our mind, that is 6 places, they require continuous supply of original chi. All the sense organs, they are getting original chi via respective organs. याद रखिए इस बात को कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स क्या हैं? ये हैं बेसिकली, एसेंशियली, दैट विच स्टोर्स द ची फ्रॉम किडनी. और किडनी के 2 काम हैं, एक ओरिजिनल ची बनाना और दूसरा अपनी किडनी वैरायटी की ची बनाना. याद रखिए दोनों में सेपरेशन नहीं हम कर सकते. मेरिडियन से जब हम लेते हैं किडनी की तो हम कह सकते हैं कि हम किडनी की ची ले रहे हैं, लेकिन हम ओरिजिनल ची कहां से लेंगे?
वो भी हमें किडनी ही जनरेट करके देगी। तो किडनी के ट्रीटमेंट करने के लिए हम कहाँ ट्रीटमेंट करते हैं? मेरिडियन में ही ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है ना? बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है और बड़ी सूक्ष्म बात है। तो आज हम लोगों ने सबसे बड़ी बात क्या कही कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, दे आर नॉट ऑर्डिनरी, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसको कई नामों से लोगों ने पुकारा है, स्ट्रेंज कंड्यूट्स, नहीं, और इसको और भी कहा इन्होंने, कई नाम बताए इन्होंने। तो ओरिजिनल ची, चाहे वो लेफ्ट से आए चाहे वो राइट से आए, वो दोनों लगातार किडनी के बीच में एकत्र हो करके और चलती रहती है। इसको ये देखा गया क्योंकि दोनों किडनी, बोथ किडनीज आर sufficiently yang, therefore the original chi is also yang as compared to essence. Original chi is yang. तो yang होगा तो ये कहाँ दिखेगा? yang ऊपर को जाता है, हल्का होता है, नॉन सब्सटैंशियल होता है, लार्जर वेवलेंथ होता है, तो ऊपर जाता है, तो ऊपर जाता है। लेकिन जो यिन पोर्शन है इसमें, जो छोटे वाले वेवलेंथ्स हैं, काले वाले वेवलेंथ्स हैं, थिक वेवलेंथ्स हैं, ठंडे हैं, ठंडा ची है, वो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो दो किडनी है, एक फायर किडनी है, एक वाटर किडनी है, एक यांग किडनी है, एक यिन किडनी है। और यिन किडनी नेचुरली यिन कैटेगरी की चीज बनाती है, which has a tendency to go down compared to yang original chi, which is generated by the right kidney, the fire kidney, and that has a tendency to go up. तो यहां पर, अच्छा, आई एम रिमूविंग दिस, एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डॉक्टर राहुल। डन सर। सर ये DU क्या होता है सर? हैं? DU जैसे गवर्नर वेसल बोलते हैं ना, उसका दूसरा नाम एक चाइनीज नाम है डूमो, ओके। सेम गवर्नर वेसल, जीवी मतलब DU। अब आप देखो, ये जो किडनी से जो बना, उसके बहुत से वेव्स हैं, सबसे छोटे वेव से लेके सबसे बड़ा वेव तक, है ना? तो मान लो, लेट अस ड्रॉ इट अगेन, और हम ऐसा ड्रॉ करें, लेट अस ड्रॉ इट। जितनी वेवलेंथ वहां से आई, कितनी, हंड्रेड्स ऑफ वेवलेंथ, ची जो दोनों किडनी ने ट्रांसफॉर्म करी, एसेंस से ट्रांसफॉर्म करके ओरिजिनल चीज जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत से वेवलेंथ्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ वेवलेंथ्स। इन वेवलेंथ्स को चाइनीज ने ध्यान से देखा और उसे उन्होंने कहा कि 8 कैटेगरीज की हैं। कितने कैटेगरी की है? 8 कैटेगरी की है, 8 कैटेगरीज।
इसमें सबसे ज्यादा यांग, सबसे ज्यादा यिन से लेकर के सबसे ज्यादा यांग, ये मोस्ट यिन है यहाँ नीचे। और ये मोस्ट यांग है। एट कैटेगरीज में इसको बांट के रखा। ये ओरिजिनल ची 8 categories में, so there are 8 vessels. They are stored in 8 different vessels. आठ कैटेगरीज की हैं, आठों अलग अलग वेसल्स में हैं। राइट, 8 कैटेगरीज की हैं, आठों अलग अलग में। तो ये यिन और यांग का मिक्सचर है। कहां पर? मिंगमेन गवर्नर वेसल 4 पर, जहां से ये मिक्स चलता है। अब सवाल ये है, कई बार आपने सुना होगा किसी की एक किडनी निकाल दी जाती है तो क्या होता है, तब क्या होगा? तो ये जो रेड वाले 4 कैटेगरी यांग वाले हैं, ये यांग वेसल्स में रहते हैं। और जो यिन वाले हैं वो यिन वेसल्स में रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। एक ये सिंपल बात है जो हमारी समझ में आ रहा है, आपकी समझ में भी आना चाहिए। इन 8 वेसल्स के आकार, शेप क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक बात मालूम है। क्या मालूम है? कि ये ओरिजिनल ची हर वैरायटी की 8 वैरायटीज हैं, 8 कैटेगरीज हैं। आठों कैटेगरी की जो ओरिजिनल ची है वो कई जगह हमारे शरीर में जो 12 रेगुलर मेरिडियंस हैं, उन मेरिडियंस को भी टच करती है। मतलब वेसल को समझ लो आप एक गुब्बारे की तरह है, और वो गुब्बारा ऐसा है कि वहां पर कई एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं। वो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हमारे जो 12 रेगुलर मेरिडियंस हैं, उन मेरिडियंस में दिखाई पड़ते हैं, बाकी हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ते। रेगुलर मेरिडियंस में ही वो बिंदु दिखाई पड़ते हैं जहां पर हमें ये ओरिजिनल चीज जो जा रही है 8 कैटेगरी की, वो दिखाई पड़ती है। एक एक कैटेगरी की जो ओरिजिनल चीज है वो एक ही मेरिडियन के पॉइंट्स को नहीं टच करती, 1 2 3 4 कई मेरिडियंस के पॉइंट को एक ही वेसल से कनेक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। हर वेसल कई मेरिडियंस को टच करता है, जहां वहां हमें मैनिफेस्ट होता है। वो पॉइंट्स कुछ चाइनीज ने पता किए और कुछ पॉइंट्स पता नहीं कर पाए, जो कि आज भी पता नहीं है। लेकिन जो पॉइंट्स पता लग गए, उन पॉइंट्स को मिला दिया
और मिला के कहा कि ये रास्ता है इस कैटेगरी की ची, और वो 8 वेसल्स के 8 अलग अलग नाम रख दिए उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये वाली वेसल की जो ची है वो इन किस मेरिडियन में कहां टच करती है, जो पता लग पाया चाइनीज को वो उन्होंने लिस्ट कर दिया। वो हम लोग सारे लिस्ट देखेंगे, हम लोग वेसल्स का नाम देखेंगे, और we will see that each vessel which meridians it touches. So that vessel, if we want to utilize that chi in those meridians, then we can simply either increase the supply in those meridians directly from the vessels, or we can receive the chi from those meridians. तो ज्यादातर जो बीमारियां पहले पता लगी वो सब एक्सेस कंडीशन की पता लगी, है ना, इन्फेक्शन से होती ज्यादातर बीमारियां। आप मॉडर्न साइंस भी कह रहा है, इवन मॉडर्न साइंस इज सेइंग दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन ओनली, जो बाहर से आता है। इन्फेक्शंस आर जनरली एक्सेस। इन वेसल्स में ओरिजिनल ची होने के कारण दे कैन टेक सक इन द एक्स्ट्रा ची। लेकिन चूंकि मेरिडियंस में ची फ्लो कर रही होती है, इफ सम ची इज फ्लोइंग इन ए टनल, इन ए कंड्यूट, इन ए पाइपलाइन, तो क्या करेगी, जहां से ये जुड़ी है वहां से खींच के सक्शन कर लेगी, तो मेरिडियन में भी ची आ सकती है। सो दीज ओपनिंग्स कैन बी ऑफ यूज आइदर फ्रॉम फॉर रिसीविंग द ची फ्रॉम मेरिडियन टू वेसल्स, और फ्रॉम सेंडिंग द ची फ्रॉम वेसल्स टू मेरिडियंस, डिपेंडिंग ऑन फोर्स कहां ज्यादा है, सकिंग फोर्स कहां ज्यादा है। Is it clear or should I repeat it? I don't know. So I take it that it is clear. The little explanation, sir, once again. देखो मैं बताता हूं आपको। मान लो कि एक ये वेसल है। Suppose this is a vessel. I'm not naming it, any vessel. And it is meeting a meridian. Suppose this is a meridian. Right? And in this meridian, what is the difference between these two? Here it is storage, and here the chi is flowing. Here the chi is flowing. Now this vessel and this meridian has a junction. That means this vessel is meeting this, somehow connected to this meridian. Suppose it is connected to this particular place. Sorry. Suppose it is connected to at this place. This is a vessel and this is a meridian. In the meridian, the chi is flowing in this direction. We are taking it. Now, if this is flowing in this direction, so this chi which is flowing in the meridian will have an effect of sucking the chi. Isn't it so?
this will have a sucking effect. Hello? Yes, sir. Do you understand this mechanism? Yes, sir. Now, there is another fact. What is the fact? That this ये जो vessel है, इसमें क्या है? Reverse. किडनी की ओरिजिनल ची है भाई। और ओरिजिनल ची की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका? सकिंग। सो दिस वेसल wants to suck in the chi. बड़ी मुश्किल बात है। क्या होगा? जहां मीटिंग पॉइंट है, ये चाहती है to suck in. Why this wants to suck in? Because there is original chi here. यहां ओरिजिनल ची है, और ओरिजिनल ची का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? खींच लेना, ले लेना, रिसीव कर लेना। तो इस बिंदु से दो फोर्सेस है। एक फोर्स वेसल की ची मेरिडियन में ले जा सकती है, दूसरी फोर्स मेरिडियन की ची को वेसल में ला सकती है। Okay. अब मेरिडियन कहां से कनेक्टेड है? मेरिडियन इज कनेक्टेड टू व्हाट? इट इज कनेक्टेड टू organ. organ. Yes, very good, Divakar. इसके मतलब ये हुआ कि मेरिडियन और ऑर्गन दोनों का कनेक्शन वेसल से है कि नहीं? Correct. समझ में आ रही बात? और Yes, sir. एक वेसल कोई एक ही मेरिडियन से एक ही बिंदु पर नहीं जुड़ी हुई है। Each vessel is connected to more than one meridian at more than one point. ये एक और बात है। ठीक है ना? तो अगर हमें ये लगता है कि ची की एक्सेस की वजह से प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ओरिजिनल ची की क्वांटिटी वेसल में बढ़ा सकते हैं। क्या होगा? जो मेरिडियन में एक्सेस है वो ओरिजिनल ची वो इसमें चली आएगी, वेसल में चली आएगी। और याद रखिए, ची जहां जाती है वैसी हो जाती है। अगर यांग मेरिडियन में जाएगी तो यांग हो जाएगी, यिन मेरिडियन में आएगी तो यिन हो जाएगी, यिन वेसल में जाएगी तो यिन हो जाएगी, यांग वेसल में जाएगी तो यांग हो जाएगी। ये मैकेनिज्म अगर आपने आज इतना समझ लिया तो समझिए कि बहुत अच्छा काम हो गया। सारा काम इजी हो जाएगा, बहुत आराम से हम लोग समझेंगे। Yes, sir. ठीक है? Yes. सर एक पूछना था। हाँ बोलिए। हेलो हाँ सर, एक ये आपने जो बोला ओरिजिनल ची विसल्स में और ये मेरिडियन में, तो बाय डायरेक्शनल होगा है ना? वो इधर भी हाँ। आएगा उधर भी जाएगा। अब जिधर का फोर्स ज्यादा होगा, याद रखिए, ची फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अगर मेरिडियन का फोर्स ज्यादा है तो खींच सकती है। मेरिडियन से ची वेसल में जा सकती है, वेसल से ची मेरिडियन में आ सकती है। जिधर कम होगा उधर चली जाएगी ची। वेसल और मेरिडियन दो है ना। अब अगर वेसल में ची ज्यादा है प्रेशर और मेरिडियन में कम है तो वेसल से मेरिडियन में चली जाएगी। और अगर मेरिडियन में ज्यादा है
बहुत ज्यादा है तो सक कर लेगी, रिसीव कर लेगी वो वेसल। बोथ इट इज टू वे ट्रैफिक, इधर भी जा सकती उधर भी जा सकती। दैट मीन्स जैसी जरूरत होगी, whatever is required to keep your body and mind in good health, that will be done through these vessels. Sir, Yeah. basically homeostasis, huh? It does it. Not basically, but yes, even homeostasis. बहुत बड़ी चीज है ये वेसल्स, मैं आपको और बताऊंगा। वेसल्स एक ऐसी चीज है जिसको कि अभी तक पूरा पूरा समझा नहीं गया है। What I am trying to do is that I have been thinking about it, meditating upon it, and whatever I have understood, I am trying to share it with you. These are Yes. such things, these vessels are such things, like we have 9 grahas, planets of Jyotish. कहते हैं ना कि 9 Yes. ग्रह जो हैं उनके द्वारा हमारा सारा काम चलता है, सारा प्रारब्ध उससे गवर्न होता है। तो ये जो 8 वेसल्स हैं ये हमारे भाग्य के निर्माता हैं। कहते ना अभी हमारा समय खराब चल रहा है, कोई कहता है ना these days my time is not good, I am suffering, I am having mental problem, physical problem, material problem, spiritual problem, whatever kind of problem. These vessels can take care of that also. हमारा शनि ग्रह खराब चल रहा है, apply vessels properly, अब वो शनि ग्रह भी शांत होगा। This is trying to give you, bring this body mind in harmony with nature, with our outer ambience. तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप वेसल्स लगाते हैं तो आपको अंगूठी पहनने की भी शायद जरूरत ना पड़े, और अगर आपने सही अंगूठी पहनी है तो ये वेसल्स उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, सो वेसल्स आर वेरी वेरी बिग थिंग्स। इनको हमें समझना, और समझ के अगर हम इसे यूज कर सकें तो बड़ी बात है। इन वेसल्स को यूज करके लोगों ने ये देखा है कि अचानक वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं जिन बीमारियों को चाइनीज ने मेरिडियंस के बिंदुओं के द्वारा कितना भी ट्रीटमेंट कर लिया ठीक नहीं होता था, और हमने जैसे ही वेसल को ट्रीट किया ठीक हो गया। तो इन्होंने क्या कहा, इसका नाम दिया स्ट्रेंज कंड्यूट्स, स्ट्रेंज मेरिडियंस, ये सब भी नाम दिया। तो नाम लिखा हुआ था चाइनीज, एनीवे। तो हर वेसल के हमने आपको बताया कि ये टच करती मेरिडियंस को। तो अगर मेरिडियंस के पॉइंट्स देखें तो एक ही वेसल 2-3 मेरिडियन के पॉइंट होंगे, उसमें 4 मेरिडियन के पॉइंट हो सकते हैं। तो उस वेसल के नाम से उन बिंदुओं को मिला करके एक पाथवे हम बना सकते हैं। अगर वो यिन वेसल है तो हम ऊपर से नीचे उसको समझें, और अगर यांग वेसल है तो हम नीचे से ऊपर समझें। ये एक नई बात बता रहा हूं मैं आपको, इसको ध्यान में रखिए। 4 Sir, हमारे पास यांग again? वेसल है, 4 हमारे पास यिन वेसल है। क्या मतलब हुआ इसका, यांग वेसल और यिन वेसल? यांग वेसल में यांग ज्यादा है, यांग ची ज्यादा है, यिन वेसल में यिन ची ज्यादा है। दोनों किडनी, एक वाटर किडनी एक फायर किडनी, तो फायर किडनी ज्यादा यांग बनाती है तो यांग वेसल्स से कनेक्शन है उनका, और यिन किडनी वाटर किडनी ज्यादा यिन बनाती है तो वो यिन से कनेक्टेड है ज्यादा। हमारे बॉडी में ची इज यांग प्लस यिन,
सर ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर समझ में नहीं आया। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप ये समझिए, अगर मान लीजिए कि हमने इस मेरिडियन को और एक दूसरा मेरिडियन, तीसरा मेरिडियन, हमने पॉइंट्स बनाए, तो कुछ पॉइंट्स पैर में हो सकते हैं, कुछ हमारे बॉडी में हो सकते हैं, कुछ हमारे हेड में हो सकते हैं, हो सकता है कि नहीं? हेलो। यस सर, यस सर, यस सर, हो सकता। अब यही वेसल का कनेक्शन कुछ बिंदु ऐसे हैं जो पैर में है, उनसे कनेक्शन है एक दो बिंदुओं पे, बॉडी में है उससे एक दो कनेक्शन है, कंधे पे है उससे कनेक्शन है, और सिर में है उससे कनेक्शन है। तो अगर ये यांग वेसल है तो हम ये समझना चाहिए कि ये हल्का है और नीचे से ऊपर ले जाएगा, कुछ भी चीज इसमें जो होगी वो नीचे से ऊपर जाएगी। तो हमें ये समझना चाहिए कि उस वेसल के जो वो पॉइंट्स हैं, वो जो पाथवे हम ड्रॉ करेंगे, उसमें ची नीचे से ऊपर जा रही है। एक जस्ट Okay, गेस sir. है, हाँ, Yes, sir. नथिंग हैज बीन प्रूव्ड, बट बिकॉज द कैरेक्टर अगर यांग है तो इट हैज टू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, कुछ Yes, समझ में sir. आया कि नहीं? बिल्कुल ही नहीं। So is it connected with energy taken from sun and energy taken from the earth? Meaning from cosmos, What do yang you mean? energy taken from the cosmos or solar energy and the earth energy. In ऐसा कुछ है क्या sir? Srividya, Connection? Srividya, what you are asking is very very basic. Okay. चाइनीज के पास, अच्छा चलो लेट अस टॉक अबाउट इट। नहीं नहीं ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये उठा है तो समझना चाहिए। पहले एक ओल्ड मॉडल हुआ करता था चाइनीज का। चाइनीज ने ये कहा कि जो भी चीज हमारे बॉडी में आती है, जिससे हमारी लाइफ चलती है, वो चीज कॉस्मोस से आती है, एम्बियंस से आती है। तो कहां से आती है? हमारे हाथों और पैरों से आती है। तब उन्होंने कहा यांग ची ऊपर होती है, हेवन, और यिन ची अर्थ में होती है, अर्थ। तो अर्थ में पैर लगा हुआ है, तो कुछ ची अर्थ से आती है, वो यिन है, क्योंकि अर्थ इज द बॉटम जहां पर हम खड़े हैं, और स्काई इज ऑल ओवर, बाहर। तो जो बाहर से आ रही है वो यांग ची है, और जो अर्थ से आ रही है वो यिन ची है। दिस इज व्हाट दे स्टार्टेड थिंकिंग विथ, और यही चीज चली समवेयर अराउंड 220 BC टू से 100 BC और समथिंग लाइक दैट। 100 साल, 150 साल या 200 साल समझ लीजिए, ये मॉडल रहा। उसके बाद सडनली मॉडर्न साइंस स्टार्टेड कमिंग इन, और ये पता लगा कि साहब आप खाना ना खाएं तो भी मर जाएंगे, हवा ना लें तो भी मर जाएंगे, खाना ना खाएं तो भी मर जाएंगे बाहर से। लेकिन ये खाना खाने से मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होता, हवा डालने से मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होता। इसके मतलब हमारे शरीर में वो चीज बनती है जिससे हम जिंदा हैं। Okay. बाद में नया मॉडल आ गया, विच नाउ चाइनीज हैव आल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग, दैट द मेजर सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ chi is inside our body and not cosmos. The chi which is responsible to run our life, major portion of that chi is generated in our body, and it is not that it is coming from some chi will come from cosmos, no doubt. नहीं? और जो योगी होते हैं, they can connect themselves with cosmos. They may not require anything from earth, but it is better to connect with earth, always desirable. ठीक है, तो ये पुरानी बात है जो आप कह रहे हैं। अब क्या है, हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट किस पे कर रहे हैं? बाय द Self-made body. modern model. The modern model is what? That most of the chi generated is in the body. It is in the body. कहाँ पर जनरेट होती है? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म, which has twofold responsibilities. दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। कौन कौन सी? जनरेट करो और जनरेट करके उसको पहुंचा दो।
ठीक है, Generate and transport. नहीं, जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट, Okay. जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची, मेरी एक बुक भी है जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची पे, और ये हम लोग काफी बात कर चुके हैं लेवल 1 लेवल 2 में, है ना। तो अब वही मॉडल चल रहा है, चाइनीज भी वही फॉलो कर रहे हैं, बट यू कैनॉट डिनाई दैट सम ची कनेक्शन इज बिटवीन दिस बॉडी एंड द एम्बियंस कॉस्मोस, वो कनेक्शन भी है, दोनों है, लेकिन मेजर कनेक्शन इज with the chi generated inside our body in the triple Warmer mechanism. That is a major portion. And in order to get the chi which is infinite in the ambience, उसके लिए ही भारत में लोगों ने योग, साधना, ये सब उसी का काम है। अभी recently, a couple of days back, one of my students in Delhi, she has written a book. She wants me to purchase that. Of course, तो उसने क्या किया कि I suggested that उसको कुछ कमी थी, विटामिन डी की और इस सब की कमी थी, which comes from sun. तो हमने उससे कहा था कि how to, maybe I said somewhere, I don't remember myself, but she says that you only suggested me to look at the sun at certain time with certain angle with certain technique. मुझे याद नहीं है, but she remembers. तो साहब आपने जैसा कहा था मैं वैसा ही कर रही हूँ, and this is what has happened, this is what has happened. So miracles have happened with her. अभी 2 दिन पहले की बात है, she was telling me. तो ऐसा कुछ हो जाए तो खाने की भी जरूरत नहीं है. You can do anything and everything, whatever. हम लोग भारतीय हैं ना, तो हम लोग का ध्यान सीधे आध्यात्म पे चला जाता है. We have a bent of mind, spiritual bent of mind. We start thinking in those times, but that is also a fact. Anyway, so Sri Vidya, you got it, huh? Yes, sir. Yes, sir. So I hope. So we were talking about this. तो ये जो 8 मेरिडियन है, we will have to know what? We will have to know that what are these 8 vessels, और इनकी जो category of chi है, what are the functions of that chi, what functions they can do, and how we can transfer chi from one vessel to other vessel, or vessel to meridian and meridian to vessel. Can we do it for the cause of ailments that appear in our body? Yes, we can do it. There are 3 universal formula. 3 universal formula. किससे उसको हम क्या कह सकते हैं? पेनेसिया. कोई भी बीमारी हो, ये 3 फॉर्मूले में से एक लगेगा. ये फॉर्मूला भी निकाला कुछ लोगों ने. हम लोग उस तरफ बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम, क्या हम इन वेसल्स को यूज करके. अच्छा, एक और थ्योरी है वेसल्स के बारे में. नहीं, पहले जैसे सर्केडियन क्लॉक था एक पुराना वाला, यू रिमेम्बर सर्केडियन क्लॉक क्या था? 2 घंटे के लिए देयर इज अ फ्लड एंड 2 घंटे के लिए देयर इज एन एब. तो एब नहीं वो मानते थे, क्या कहते थे सब, कि 2 घंटे के लिए फ्लड हो जाता है. एवरी मेरिडियन फॉर 2 hours इट गेट्स एक्सेस. सर्केडियन क्लॉक याद है, पुराना वाला. Yes. अभी हम लोगों ने नया जनरेट किया. क्या किया? that every meridian is breathing. For 1 hour it is excess and 1 hour it is deficient. Huh? तो पहले वही था, सब वही जानते थे, वही सोचते थे. नहीं, तो वो चीज उन्होंने क्या कहा कि जब फ्लड हो जाता है किसी मेरिडियन में और ची अपर लेवल से ज्यादा होने लगती है, तो वो ची जाकर के वेसल्स में इकट्ठी हो जाती है. So that theory I am discarding. उस theory को मिश्रा जी मैं discard कर रहा हूं. That is not correct. That gives a confusion in the minds of
तो ट्रीटमेंट जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, थेरेपिस्ट के माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है कि साहब जो फ्लड हो गया, अभी तो हमने वही साबित कर दिया कि आपके फ्लड ही नहीं होता 2 घंटे के लिए, नहीं, 1 घंटे ज्वार और 1 घंटे भाटा, 1 घंटे एक्सेस और 1 घंटे डेफिशिएंट, है ना, कह दिया ना हमने, और उसमें काम भी हो रहा है, एंड रिजल्ट्स आर फार बेटर देन व्हाट वी वर गेटिंग विद अर्लियर थ्योरी। तो ये भी थ्योरी गलत है। तो कहीं कहीं किताब में आपको मिलेगा कि साहब इसमें जो फ्लड आ जाता था वो एक्सेस ची यहाँ वेसल में आ जाती है, और जब जरूरत पड़ती है मेरिडियंस में तो वहां से वहां चली जाती है। इट्स ऑल रबिश, ये सब कुछ नहीं है। अब जो मैं बता रहा हूं वो समझिए। तो आप किसी बुक पर अगर ऐसे डिपेंड करेंगे तो यू विल डेफिनेटली नॉट बी एबल टू यूज the vessels like what we are using, I am using and my students are using. हम आपको ऐसा बताने जा रहे हैं कि जहां पर ज्यादा आपको कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं होगी, और आप पता कर लेंगे कि हमें वेसल को कैसे यूज करना है, क्या करना है, और हम उसके रूल्स आपको दे देंगे। तो आपको कुछ नहीं मालूम तो एज पर रूल्स आप यूज कर लीजिए, खत्म। कोई डायग्नोसिस नहीं होती, कुछ नहीं होता, कुछ तकलीफ है, यूज कर लिया, फिनिश्ड। ये हम आपको बताएंगे। These classes will culminate into those things. ठीक है? Yes, sir. ये जो 12 मेरिडियन हैं हमारे, whatever the 12 meridians that we have, ये 12 मेरिडियन राइट में भी है और लेफ्ट में भी है, बायलैटरल है। तो ये मेरिडियंस भी बायलैटरल हैं। ये वेसल्स दोनों तरफ के बिंदुओं को टच करता है। इसमें एक खास बात मैंने देखी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ और मैंने कुछ शेयर भी करने का प्रयास किया है, कि एक ही बिंदु जो राइट में है वो हो सकता है कि लेफ्ट की किडनी से कनेक्ट होता हो, क्योंकि ये जो 8 वेसल हैं दे आर कनेक्टेड टू किडनी। Young vessels are, whenever you are treating, the maximum influence goes on the fire kidney. yin vessels जब आप ट्रीट करते हैं तो it goes to the water kidney. लेकिन जिन बिंदुओं को ये टच करता है वो बिंदु राइट में है या लेफ्ट में है, इससे भी फर्क पड़ता है। So that also we are going to see that which points on the left will activate or influence which kidney, the right one or the left one, because the 2 kidneys are 2 different organs of generation. दूसरे yin organs में ये बात तो नहीं है। It is only kidney where we say that 2 kidneys are 2 different generative organs. So we have to use it to our benefit, maximum benefit that we can draw. So we will do that. At the moment, I would like to tell you that we have 8 vessels and I shall show you the names of the vessels. Okay, so let me see if I have the names of the vessels written and there. Then each vessel has a master point. What is master point? Master means Malik, boss. वो पॉइंट जो चाहे वो करवा सकता है, ची को इधर से उधर ले जा सकता है, कर सकता है। तो मास्टर पॉइंट्स की मदद से हम ची को वेसल में, किडनी से वेसल में, वेसल से मेरिडियन में, मेरिडियन से वेसल में, एक वेसल से दूसरे वेसल में, ये सारा ट्रांसफर का काम, ची को इधर से उधर ले जाने का काम हम कर सकते हैं इन मास्टर पॉइंट्स के हेल्प से। हर वेसल का एक मास्टर पॉइंट है जिसको ट्रीटमेंट करने से हम ये सारे ट्रांसफर्स, कौन से ट्रांसफर्स, वेसल टू मेरिडियन, मेरिडियन टू वेसल, वेसल टू वेसल, किडनी टू वेसल, वेसल टू किडनी, ये सारा काम हम कर सकते हैं। कौन कौन से ट्रांसफर हो सकते हैं? देखिए, लिखिए, समझिए इसको।
वेसल्स की ट्रीटमेंट करके हम क्या क्या कर सकते हैं? वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ची इफेक्ट कर सकते हैं थ्रू वेसल्स। कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, किडनी टू वेसल, अगर कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, वेसल टू किडनी, टू एंड फ्रो, है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं? किडनी एंड वेसल में कर सकते हैं हम ट्रांसफर ची बिटवीन किडनी एंड वेसल। ऐसा लिखिए इसको, एंड तो गड़बड़। Number 2, we can transfer of chi between vessels. So which vessels, from which vessel to which vessel? What we can do else? We can also simultaneously transfer from between vessel and meridians. Vessel to meridian and meridian to vessel. ये जितने भी ट्रांसफर हैं, ये सारे ट्रांसफर्स हम कैसे कर सकते हैं? By using master points. Each vessel has a master point on right and a master point on left. There are 8 vessels, 8 categories, and each vessel has a master point. And that point obviously will be, one will be on the right and the other will be on the left. So we have to also select which side of the master point we should use. We should use the master point on the right or master point on the left. ये सब क्राइटेरिया हमको बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। So now we are ready. अभी हम लोग, let me give you the names if possible, है ना। Okay, let us कैसे करना पड़ेगा? Let us stop it. Okay. और यहाँ खोल के let us see. Can we have names? Yes, we can have. We can have. And we can see this. Okay, now I can share it. ये है। देख सकते हैं आप लोग? बड़ा करूं इसे? Should I increase the size? Is it visible? दिख रहा है सबको या इसको बड़ा करूं? सब विजिबल है। Okay. 8 वेसल्स हैं जिनके ये नाम हैं और हर वेसल का एक मास्टर पॉइंट है जो सामने लिखा हुआ है। ये हमें केवल याद करना है। अब सारी ट्रीटमेंट इन 8 पॉइंट से हो जाएगा। Therefore they are called वंडर पॉइंट्स। ये वंडर पॉइंट्स हैं, ये चमत्कारी बिंदु हैं।
तो उपचार हमें कहाँ करना है? इन्हीं मास्टर पॉइंट्स पे करना है। ये सब लोग नोट कर लीजिए। और डॉक्टर राहुल से मैं कहूंगा, डॉक्टर राहुल आप इसको डन सर। आपकी समझ में कुछ कुछ आ गया होगा कि ये सर ये 16 चाहिए ना सर? है जी। ये आप बोले लेफ्ट में 8 है और राइट में 8 है, तो ये 16 होना चाहिए ना मास्टर पॉइंट्स? नहीं, मास SI3 तो एक ही है ना, राइट में है एक लेफ्ट में है। यस यू आर राइट। एक राइट में SI3 है, एक लेफ्ट में SI3 है। नहीं समझे आप? पॉइंट तो 8 ही है ना, 8 पॉइंट राइट में भी है, 8 पॉइंट लेफ्ट में भी है। ये कहा मैंने, यस 8 पॉइंट ही हैं, लेकिन 8 राइट में भी है, 8 लेफ्ट में भी। लेफ्ट में भी। वो हमको देखना होगा कि हमें राइट वाला यूज करें कि लेफ्ट वाला यूज करें। क्या क्राइटेरिया है? वी विल सी, वी विल सी इट। और कुछ? एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क? और सर याद इनका रखिए, नाम है, यस सर बताइए सर, याद रखिए सर। क्या बता रहा था मैं? एनीवे चलो ठीक है। तो हमें ये देखना होगा कि ये किडनीज हमें याद रखनी है। एक किडनी फायर किडनी है, एक किडनी वाटर किडनी है, इसलिए इनको यूज करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। दूसरा, मेल फीमेल में डिफरेंस होता है ना। हम लोग यहाँ ओरिएंटल जो विजडम है, ओरिएंटल विजडम में वी हैव नॉट said that the kind of theory and the philosophy which has come from West, फेमिनिज्म जिसको हम जानते हैं, वेस्टर्न फेमिनिज्म, है ना, ये सारी बातें कहाँ से आई हैं? वीमेंस लेबर, ये सब जो सब, ये सब वेस्टर्न है मामला। हम लोगों ने हमेशा अप्रिशिएट किया है, वी हैव बीन ऑलवेज वाइजर देन देम इन द सेंस दैट वी नो द डिफरेंसेस। हम लोगों ने तो यहां तक किया कि योग साधना में मेल और फीमेल अगर बैठे तो उनको बैठने का तरीका भी अलग है। I was rather surprised when I came to know about it. The very structure of spine in male and female is different. जो काम फीमेल कर सकती मेल नहीं कर सकता, है ना। तो इसी प्रकार हमारी किडनीज में डिफरेंस है। सो द एप्लीकेशन ऑफ दीज फॉर्मूले फॉर मेल्स एंड फीमेल्स दे विल ऑल्सो बी डिफरेंट। तो वो हमें नोट करना पड़ेगा। ठीक, और कुछ अगर आपको पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो आज की हम लोग क्लास यहीं बंद करेंगे। Sir, for P6 and SP4, for heart blockages which I am using, can I use red color on P6 and SP4, sir? No, you should use that which you want to increase the pressure, that you should use red, and where the vessel where you want to decrease the pressure or create a vacuum, there you can use black. Blockages means I can use red, no, sir, to remove block. Blockages means yin is excess. So to reduce in, I can use red. Right? P6 Where is you in or want yang, to- sir? Vessels are entirely different. Vessels are having a different kind of a use and understanding. When No, we sir, I talk am not about, talking about vessels. no, when I we am are, talking about P6 and SP4. They They are are in or if you want to use them as master points of vessels, then the color system will be different. Meridians में हम लोग क्या करते थे, कलर यूज होता था, the same color we used to use on all points, but that is not the case when you are using SP4 P6 for heart ailments.
नो। धैर्य रखिए आप वेंकटेश, यू विल कम टू नो अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। बहुत सी नई और चमत्कारपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएंगी तो यू विल बी अ मास्टर टू यूज इट। ओके सर। सर Yes. इनका Sir, एक नाम question था। है, इनका नाम है EOB, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स। हाँ, इट कई मीन्स नामों से जाने जाते हैं ये, देयर आर अदर नेम्स आल्सो। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन ये था, इफ इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो देन देयर सम ऑर्डिनरी वेसल्स आल्सो। ऑर्डिनरी वेसल्स तो आपके मेरिडियन है सारे वेसल। आपका ऑर्गन भी वेसल है, ऑर्गन वेसल नहीं है क्या? उसमें ची नहीं जमा रहता है क्या? आपके जितना मसल, वेयर डू यू फाइंड ची इन योर बॉडी डॉक्टर राहुल? मसल्स, In your muscles, मसल्स। in your all tissues, in fact all tissues are reservoirs of chi, isn't it? वो ऑर्डिनरी ची है And- या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? मेरिडियंस वहां भी chi है, ठीक है, ऑर्गन्स वहां भी ठीक chi है, है। ठीक है। ओके सर, ओके। यस डॉक्टर साहब। सर जैसे मेरे पास 2 बच्चे आते हैं, उनको सलाइवा, तो आज जैसा आपने समझाया उसको हम कैसे समझेंगे? 2 बच्चे आते हैं, उनको कैसे समझें? क्या हुआ है बच्चों को भाई? आवाज, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी। उनको सक नहीं कर पाते वो सर, क्या नहीं कर पाते? सक नहीं कर पाते सर, सक्शन नहीं है, सलाइवा ड्रूल सर, ड्रूलिंग रहती है। हाँ, सलाइवा ड्रूल कर रहा है, तो इसके मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द माइंड आल्सो। यस सर। और इस बाय केस बाकी- में ओरिजिनल ची आपको यूज करनी ही पड़ेगी। यस सर। हाँ, तो आपको तो ईओवी यूज करना ही पड़ेगा। देयर आर 3 levels, you see. There is one level of diseases which are inherent. There is another level of ailments which is called the second level of ailments, where your extraordinary vessels can help. And there is a third level which is meridian level. वहां पर केवल मेरिडियन से ट्रीटमेंट करने से चलेगा। मे बी टुमारो यू रिमाइंड मी ऑफ दिस, आई शैल लेट यू नो। 3 लेवल है। एनीथिंग एल्स? और कुछ, या बंद करूं?